वेलकम टू हेल्दी किड्स। हाउ आर यू ऑल? सो आज हमारे पास एक्सपर्ट टॉक में है डॉक्टर पारुल गुप्ता। शी इज एन आई स्पेशलिस्ट फ्रॉम पीजीआई चंडीगढ़. Along with being a senior consultant in eye department, she is a wonderful mom of two daughters, wife of a busy heart specialist, and a dear friend of mine. So आज, by the end of this video, we will have answers to all the questions on the eye health of our kids. So welcome, Dr. Parul. Thank you for being a part of Healthy Kids, and thank you for giving your time today for this talk. Thanks a lot and welcome. Thank you, Dr. Anuradha. How are you? I'm good. I'm good. So, friends, as you know, Healthy Kids is a group to help parents. They deal with their day-to-day worries about their children. तो बहुत पेरेंट्स की क्वेश्चंस होते हैं कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बच्चों की आंखों का कैसे ध्यान रखें, कॉमन आई इन्फेक्शन से कैसे बचें, बच्चों की आई साइट का कैसे ध्यान रखें. तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स आज हम अपने एक्सपर्ट से लेंगे. सो नॉट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम एंड स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो डॉक्टर पारुल, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है पेरेंट्स का कि अभी ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ हम बच्चों की आई साइट का कैसे ध्यान रखें, और नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी जब ऑनलाइन क्लासेस नहीं भी हों तब भी हम उनके लिए क्या प्रिकॉशंस लें ताकि उनकी आईज हेल्दी रहें और वो सब कुछ एंजॉय कर सकें. ऑनलाइन क्लासेस में वी हैव टू मेक श्योर कि बच्चे ब्रेक लें बीच में. Like there is the American Optometry Association which suggests that the 20-20-20 rule. So इस रूल के मुताबिक क्या होता है कि after every 20 minutes take a 20-second break and look 20 feet away. So that is the 20-20-20 rule, which I think all parents should enforce upon their children, that they need to take proper breaks. Because once you take breaks, then you will start blinking. Because if you will notice that children usually on mobiles and laptops, they usually don't blink their eyes. They stare at the laptops and mobiles and TV for a long period of time without blinking. So what does that do is that leads to evaporation of the tear film. जो हमारी tears होती हैं eyes में, वो evaporate हो जाती हैं, और evaporate हो जाएंगी तो उससे eye में dryness होएगी. तो उस eye की dryness को prevent करने के लिए हमें blink करना बहुत जरूरी है. वो blink तभी होएगा when we take breaks. So there are many softwares also available online, like the pause software, so which you can install in your computers, and then they will you can set a reminder, and they will keep on reminding the child or even the adults that they need to take certain breaks in between. That's a very good idea. अगर सॉफ्टवेयर रहेगा, रिमाइंडर्स आते रहेंगे, तो एटलीस्ट बड़े बच्चे तो उसको देख के ब्लिंक कर सकते हैं. So friends, follow the 20-20-20 rule for yourself also and for children also. हर 20 minutes के बाद 20 seconds का break, blink and look 20 feet away. Am I right? Yes. Is that it? And of course, use the pause software. आजकल टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बहुत इजी कर दिया है. So use this software and make your kids eyes healthy. तो चलिए, second question is, अपने बच्चों को हम आई फ्लू और कुछ आई इन्फेक्शंस होती हैं जिसमें आईज में छोटी छोटी स्वेलिंग्स बन जाती है ना, कभी ऊपर वाली आईलिड पे, कभी नीचे वाली आईलिड पे, तो उनसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, और अगर हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? ओके, ये जो स्वेलिंग्स होती हैं आईलिड्स पे, ये यूजुअली इनको स्टाई बोलते हैं. इट इज कॉल्ड एज स्टाई. So this is due to the fingering of the eyelids. Fingering means that when the child continuously rubs his eye or puts the dirty fingers on the eyes, keeps on rubbing them, so those organisms जो कीटाणु हमारे हाथों पे होते हैं, वो हमारे आईज में चले जाते हैं, और उसकी वजह से ये इन्फेक्शंस मोस्टली बच्चों में देखी जाती हैं. So we recommend that children should always wash their hands regularly. अगर रब करना है आई को तो they can do it gently, but after washing their hands properly. And on the whole, children should avoid rubbing their eyes. So that is a major factor. दूसरा, uncorrected refractive errors also lead to such situations, because once a child cannot see properly, अगर वो देख नहीं सकता properly, तो वो बार बार अपनी आंखों को मलेगा. Who have recurrent styes, जैसे उनको बार बार इन्फ्लेमेशन होती है आईलिड पे, या स्वेलिंग्स हो जाती हैं आईज के ऊपर बच्चों को, तो उनको अपने हाथ जरूर धोने चाहिए, और पेरेंट्स को उन बच्चों को आई स्पेशलिस्ट के पास लेके जाना चाहिए जो अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर को करेक्ट कर सके. सो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम भी इसका कारण हो सकता है कि उसकी वजह से भी ड्राई आई से वो रब करेंगे बार बार, तो उससे भी उनको इन्फेक्शन हो सकता है. इज दैट ट्रू?
Yes, Right. it can be due to increased screen time also, because Mhm. the child will automatically rub once he is not able to blink properly. So he Right. will rub his eyes to remove the Mhm. dryness, and that will also lead to fingering of the lashes. राइट, तो किसी भी कारण से अगर वो आईज को रब करेंगे तो उनको ये इन्फेक्शन हो सकती है, तो मेन है हाँ, कि उनकी बेसिकली आपके हैंड होने चाहिए. तो बार बार हैंड वॉशिंग बहुत जरूरी है इसके लिए भी. राइट. Yes, yes. राइट राइट राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज एक्चुअली फ्रॉम अ मदर. वो जानना चाहती थी कि बच्चों की आईज को हेल्दी रखने के लिए उनकी डाइट में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, कौन से फूड्स हैं जो उनकी आईज को हेल्दी रखें. So all vitamin A rich foods like spinach, you can puree the spinach, you can mix it in dal, राइट. and green leafy vegetables. All these are good. Besides that, things like walnuts, almonds, all of them, ओके. and fatty fish, they all contain omega-3 fatty acids. So ऑलराइट. omega-3 fatty acids help in reducing the dry eyes. So they ओके. affect the dry eye component of increased screen time. So screen time is associated with dry eye, and if you take these products, it will lessen those symptoms. So अखरोट खाएं आप, बादाम बच्चों को दें, और चिया सीड्स होते हैं, फिश ओके. होती है, ये सब बच्चों के लिए अच्छी होती है. ग्रेट. फ्लैक्स सीड्स होते हैं. ओके. गुड. ग्रेट ग्रेट. सो नेक्स्ट नाउ अब हम कुछ आई प्रॉब्लम्स पे आते हैं. बहुत बार होता है कि बच्चों को जल्दी स्पेक्स लग जाते हैं, स्पेशली आजकल बिकॉज ऑनलाइन एक्सपोजर बहुत ज्यादा है. तो आप क्या रिकमेंड करते हो कि जब स्पेक्स लग गई तो 24 घंटे लगाकर रखना है, जितने समय पढ़ना है उतने समय लगाना है, या सिर्फ कुछ समय के लिए लगाना सफिशिएंट रहेगा, और किस नंबर के बाद परमानेंट लगाना जरूरी रहता है? Okay, so ideally we recommend that the child should put the specs continuously, but some children are very finicky. कई बच्चे नहीं पहनना चाहते specs, तो राइट. आप उनको ये बोल सकते हैं कि जब टीवी देखना है या कहीं आपको डिस्टेंस का काम करना है, स्पेशली अगर नियर साइटेडनेस है बच्चे को, अगर वो पास का देख पाता है पर दूर का नहीं देख पाता, तो टेल द चाइल्ड कि सिर्फ आप टीवी देखते टाइम या कुछ दूर की चीज करते टाइम आप चश्मा पहन ले, पास के टाइम आपको पहनने की जरूरत नहीं है. पर अगर उसका पास का नंबर है, प्लस का नंबर है, तो he will have to wear it for the near as well as the distance. So it depends on the number also, and initially you can tell the child कि आप थोड़े थोड़े टाइम से स्टार्ट करें, and give incentives to the child, and then you can gradually increase the duration. So no need to put it full time initially. You can just start with lesser time duration. And there is no particular fixed, yeah, there is no particular fixed number, but usually 6 to 7 years of age तक emetropinization होती है बच्चे की eyes की. That means उसका number almost normal पे आ जाता है. Usually छोटे बच्चों का plus में होता है number, +3, +4, +5. तो 6 years to 7 years की age तक वो normal आ जाता है. तो इसलिए हमें वो ध्यान में रखते हुए ही स्पेक्स प्रिस्क्राइब करनी चाहिए. अगर किसी छोटे बच्चे का माइनस में नंबर है शुरू से ही, बचपन से ही, तो यू हैव टू गिव द स्पेक्स, क्योंकि वो दैट इज नॉट नॉर्मल फॉर हिम, for that child. So that will depend on the refractive error. So basically you need to counsel the child, and then if there is a difference in the refractive error between the two eyes, then you need to take him to an eye specialist, and that eye specialist will advise patching. So patching will mean that that person needs to close the better eye and the lazy eye, which is amblyopic eye or the lazy eye, वो eye देखेगी ज्यादा. So we patch the normal eye, and lazy eye काम करेगी if there is a difference in numbers between the two eyes. Okay. So it's like अगर दूर का नंबर है तो सिर्फ दूर की चीजें देखते हुए बच्चा देख सकता है, बट अगर पास का है तो प्रेफरेबली उसको सारा समय लगाना चाहिए. शुरू में थोड़ा थोड़ा करके उसको रिवॉर्ड देकर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके उसको पूरा टाइम लगाने की आदत डाल सकते हैं. थोड़ा बच्चे की चॉइस का चश्मा हो, उसको इन्वॉल्व करके शॉपिंग कर सकते हैं ताकि उसको स्पेक्स अपना एक एक्सेसरी लगे कि ये मेरा ही है, तो प्रोबेबली शायद वो ज्यादा देर तक पहने. Yes, and some children, please continue. Some children we see they are very happy with the specs, because the parents say that they are able to see much better with specs. So a child who is able to see nicely with specs, he will accept it faster. तो एक्सेप्टेंस रेट बढ़ जाता है. अगर बच्चे का नंबर ज्यादा है और वो स्पेक्स पहन रहा है, अगर बहुत कम है नंबर तो वो शायद नहीं पहनेगा. तो बट तो acceptance depends on the number also, the refractive error also. And जहाँ तक contact lenses,
प्लीज हाँ, प्लीज उसको बहुत अच्छा दिखता है। हाँ, एंड जहाँ तक कॉन्टैक्ट लेंसेज का है, कॉन्टैक्ट लेंसेज यू कैन मेक द चाइल्ड वेयर, but once the hygienic issues are solved, like the mother or the father will need to put the contact lenses in the morning and then take them out at night. So those issues are there with contact lenses. So ideally we recommend that children should use contact lenses once they are able to take care of their own contact lenses. एंड उसके लिए हाइजीन भी बहुत जरूरी है। कॉन्टैक्ट लेंस यूज करने के लिए बच्चे को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस मिलने चाहिए कि हैंड वॉश अच्छे से करना है, लेंजेस को क्लीन करना है रेगुलरली एवरी डे, डोंट टॉप अप the solution, change the solution in the lens case every day. So all these are points which need consideration. Don't sleep with the lenses, don't have a bath with the lenses, don't go for swimming with the lenses, because they can all lead to infections and lead to corneal ulcers. पुतली खराब हो सकती है अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज करें अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट में। तो एक बच्चा जो उतना बड़ा है कि उसे समझ है वो ही यूज करे कॉन्टैक्ट लेंसेज। तो ये तो बच्चे बच्चे की एज पे डिपेंड करेगा, कुछ बच्चे 10 साल पे भी समझ जाते हैं, कुछ को 12-13 साल की उम्र में ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग Yes, होती है, तो डिपेंडिंग ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग। exactly. तो वो शायद पेरेंट्स बेटर असेस Exactly. कर पाते हैं कि ये हैंडल कर लेगा या नहीं कर लेगा। तो अगर उन्हें लगता है कि बच्चा हैंडल कर लेगा Yeah. और बच्चा पहनना चाहता है, उसकी विलिंगनेस, कुछ बच्चे स्पेक्स में भी खुश होते हैं। मैं तो अभी तक Willingness. मैंने कभी लेंसेज नहीं लगाए बिकॉज मुझसे लगे ही नहीं कभी। तो Exactly. कंफर्ट लेवल पे भी डिपेंड Exactly. करता है प्रोबेबली। तो अगर बच्चा चाहता है लेंसेज लगाना तो उसे समझाना Exactly. पड़ेगा, Specs look, तो उसे समझाना पड़ेगा कि बेटा आपको अपनी exactly. आईज का Spectacles ध्यान look रखना है। very smart. या So सो इफ बच्चा एक्सेप्ट करता है तो स्पेक्टिकल्स भी लगा सकता spectacles है। look very smart. राइट 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 राइट, परफेक्ट। Yes, yes, exactly. व्हाट अबाउट लासिक? आजकल बहुत से लोग बोलते हैं कि चश्मा उतर जाएगा, लेजर करवा लो, लासिक करवा लो, तो उसके लिए क्या कट ऑफ्स रहते हैं, कब कराना चाहिए, कब नहीं कराना चाहिए? आप लोग रिकमेंड करते हो वैसे रूटीनली बच्चों में? The Yeah, ideally the recommended age is above 21 years of age for LASIK. और not? So, and अगर बहुत कम है नंबर 1.5 है तो I think it can be avoided unless you need for some recruitment, like for some job purpose. अगर जॉब के लिए कोई मिलिट्री में जाना है, आर्मी में जाना है, पुलिस फोर्स में जाना है, तो तब आपको लेस देन 21 years of age में आप करा सकते हो LASIK, बट आइडली वी रेकमेंड दैट 21 years की एज के बाद ही आप LASIK के लिए आप यू ऑप्ट फॉर इट। ओके, तो बच्चों में ऑफ कोर्स लासिक नहीं ऑप्ट करना चाहिए, स्पेक्टिकल्स एंड कॉन्टैक्ट नहीं, लेंसेज आर टू अवॉइड करना ऑप्शंस। चाहिए बिकॉज द eyeball is growing. ओके, Yeah, फाइन, because the या eyeball is growing. So the eyeball राइट। will grow continuously. So even अगर हम LASIK कर भी लेंगे नंबर फिर आ जाएगा, so there will not be any purpose या solved. डेफिनेटली डेफिनेटली। ओके, एज अ रूटीन बर्थ के बाद कितनी फ्रीक्वेंटली आई चेकअप कराना चाहिए नॉर्मल बच्चा जिसको कोई कंप्लेंट्स नहीं है उसके केस में? Okay. Ideally, we should get a checkup at around 6 months to 1 year of age to फर्स्ट see for चेकअप? any cataract. ओके Yeah. And then at around 3-4 years of age, and then yearly once the child enters school years. ओके, सो 6 months फर्स्ट चेकअप, देन 3 years एंड देन Yeah. ईयर, हर साल एक बार And आई then स्पेशलिस्ट से yearly. जरूर मिलें। एक बार ही मिलने, yeah, because some conditions like cataract, refractive errors, they can be missed. Because जो early stage of cataract है या congenital developmental cataracts होते हैं वो miss हो सकते हैं if we delay. And अगर one eye में cataract होएगा और वो miss हो जाए तो फिर it will be amblyogenic, that is वो वाली eye lazy हो जाएगी, वो उसकी बाद में भी vision कम ही रहेगी फिर. So it goes like that. सो ये थे हमारे कुछ जनरल क्वेश्चंस। इसके बाद हमारे कुछ पेरेंट्स के क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है हेल्दी किड्स, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और कोई भी क्वेश्चंस हो आप प्लीज कमेंट्स में टाइप कीजिएगा। आई विल ट्राई टू आस्क डॉक्टर पारुल इन हर फ्री टाइम एंड आई विल डेफिनेटली लीव एन आंसर। सो अभी हम अपने कुछ पेरेंट्स के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। एक मदर का पूछना था कि उनकी डॉटर को एक बार ड्राई आई हो गई थी, उसके बाद से जब भी वो स्क्रीन देखती हैं तब उसकी आंखों से वाटरिंग बहुत होती है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसके लिए वो कुछ कर सकती हैं?
She has got a component of dry eye. She should go to an eye specialist. एक बारी proper examine कर लें. But till then she can use any over the counter lubricating drops available होती हैं. Carboxymethyl cellulose या hydroxymethyl cellulose based drops she can use, या sodium hyaluronate drops. So she can use any of the lubricating drops for the time being till she consults an eye specialist. Okay. सेकेंड क्वेश्चन इज कि एक बच्ची है जो बहुत पास से स्क्रीन देखती है और पढ़ते हुए भी बुक्स को बिल्कुल पास में रखती है। एज सच उसकी आईज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई साइट इज परफेक्टली ऑल राइट। तो उसकी मदर कंसर्न है कि शुड शी कंटिन्यू दिस और या फिर उन्हें कुछ मेजर्स लेने चाहिए इसको अवॉइड करने के लिए। She should get a proper refraction done. ग्लासेस का नंबर एक बारी वो चेक करा लें, क्योंकि पेरेंट्स को कभी कभी इतना नहीं रियलाइज होता, बट वो आई स्पेशलिस्ट ही बता सकते हैं कि इसमें रिफ्रैक्टिव एरर है कि नहीं है। सो वंस दे शुड गेट दैट चेक एंड देन सी, बिकॉज अगर बच्चा पास से पढ़ रहा है दैट मीन्स ही इज एबल टू सी फॉर नियर, बट probably he might not be able to see for distance. So Maybe. once general examination is essential. एंड लास्ट क्वेश्चन, कब कब किस किस प्रॉब्लम के केस में आई स्पेशलिस्ट को इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए? क्या इश्यूज हों जब बच्चा कुछ कंप्लेंट्स करे कि पेरेंट्स को आई स्पेशलिस्ट को दिखाना ही चाहिए अर्जेंट? There are certain complaints like any pain in the eye, any foreign body sensation, जैसे बच्चा बोलता है मेरे आँख में कुछ डल गया, मुझे रड़क हो रही है, इरिटेशन हो रही है या इचिंग हो रही है, बिकॉज एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस जो है, इचिंग की प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन है बच्चों में, स्पेशली बॉयज में. दैट इज नोन एज स्प्रिंग कैटार. So it usually happens in boys during the summer months. It gradually weans off, but it has long-term sequelae if not treated. तो अगर प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो वो आगे प्रोग्रेस करके केराटोकोनस जैसी बीमारियों में भी एसोसिएट हो सकता है. तो पेन, वाटरिंग, इचिंग, redness, any discharge from the eyes, if any excessive discharge, it might suggest some form of conjunctivitis हो सकता है बच्चे को. या अगर बच्चा कंप्लेन करता है कि बच्चा नहीं तो या तो पेरेंट्स नोटिस करते हैं कि there is any white reflex in the eye. White reflex in the eye can be due to cataract, it can be due to certain cancers, retinoblastoma. So that needs to be checked. जो हमारा प्यूपिल होता है, सेंटर में एक ब्लैक पोर्शन होता है, उसके अंदर एक और छोटा ब्लैक पोर्शन प्यूपिल होता है, उसके अंदर आपको अगर व्हाइटनेस दिखे, सफेदी दिखे, तो पेरेंट्स को इमिडिएटली जाना चाहिए टू द आई स्पेशलिस्ट. एंड या अगर पेरेंट्स को नोटिस हुए कि बच्चा स्क्विंट कर रहा है, उसकी आंखें टेढ़ी हो रही हैं किसी भी डायरेक्शन में या बाहर या अंदर, तब आपको आई स्पेशलिस्ट कंसल्ट करना चाहिए. So these are the main things. या फिर अगर eyelids की swelling हो जाए, कई बच्चों में बहुत होती है, which is known as cellulitis, orbital cellulitis or preseptal cellulitis. So orbital is the dangerous form, preseptal cellulitis is the initial form. So उसमें सारे आपके eyelids बच्चों के swollen हो जाते हैं, बच्चा open नहीं कर सकता eyes. In that case also you must visit an eye specialist. That is also very important. Great. So friends, हमने आज जाना कि अगर बच्चों की आईज को हेल्दी रखना है तो वी शुड फॉलो द 20-20-20 रूल. हर 20 मिनट्स के बाद 20 सेकेंड्स ब्रेक लें, आईज को ब्लिंक करें और 20 फीट दूर देखें. सेकेंडली, omega-3 fatty acids rich almonds, walnuts, fatty fish, vitamin A से rich fruits and vegetables जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पम्पकिन, कैरेट, इन सबको अपनी डाइट में इंक्लूड करें. एक बार जब बच्चा 6 महीने का हो, फिर जब 3 साल का हो, और स्कूल जाने के बाद हर साल उसका आई चेकअप जरूर कराएं. और अगर कुछ भी आई में दिक्कत लगती है जैसे कि रेडनेस, स्वेलिंग, अगर बच्चा बार बार आंखों को मल रहा है, उसको लग रहा है उसकी आंखों में कुछ अड़ रहा है, या आपको लगता है कि उसको स्क्विंट या भैंगापन आ रहा है, तो जरूर अपने आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें. थैंक यू डॉक्टर पारुल, थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम टू give this immense knowledge to our viewers. अगर कुछ questions होंगे तो I'll definitely convey to you so that our viewers can get their answers. Definitely. Thank you for your time. Thank you so much. Yes, definitely. Thank you. So friends, if you like this video, please hit the like button and share the video with your friends. You can join my Facebook group for parents, Healthy Kids. The link is in description box. कोई भी क्वेश्चंस हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. I'll try to answer each and every one of them.
तब तक के लिए stay safe, stay healthy.